if I talk about learning organization, it is all about organizations learning, unlearning and relearning. Not only corporates but academic institutions को भी learning organization बनना चाहिए. Learn from your mistakes, learn from your experiences, learn from the experiences of others. Academics was never a straight path. मैंने बहुत corporate पे try भी किया, but then academics pulled me back, and it is only because of the students. Teaching is the profession that creates all other professions. टीचिंग जैसा नोबल प्रोफेशन आई डोंट थिंक कि कोई भी हुआ है. Do not go by market trend या market buzz जो create हुई है, वो नहीं करना चाहिए. Do जो आपकी personality जिसमें सूट करती है. You should be very clear. What is my current reality? मेरा personal vision क्या है और मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा या पहुँचूंगी. मैंने जब फर्स्ट या सेकेंड पोस्ट या डाला अपना और मे बी 10th पोस्ट डाला, I was on it. That there is no looking back. We should collaborate instead of competing with each other. Competing से क्या होगा? Nothing. There's no success. It is all about consistency and authenticity. आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, आप वो करो. वेलकम बैक दोस्तों टू द एक्सपर्ट एंगल. मैं हूं अदिति और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सबको टच करता है, द फ्यूचर ऑफ वर्क. और सच बोलो तो करियर आज एक सिंपल सा लैडर नहीं, इट्स मोर लाइक अ जंगल जहाँ बीच बीच में साइड हसल्स भी आ जाते हैं. रिसर्च कहता है कि अगले 5 साल में हम जो स्किल्स यूज़ करते हैं उनमें से लगभग आधी स्किल्स डिसरप्ट हो जाएंगी. मतलब हम सबको अपने को बार बार रिट्रेन करना पड़ेगा. इसीलिए हमारे गेस्ट आज के एपिसोड के लिए एकदम परफेक्ट है. उनके पास हैड ज़्यादा है या नेटफ्लिक्स सीरीज़ के प्लॉट ट्विस्ट, ये तो आपको खुद डिसाइड करना है. एक एकेडमिशियन जो लर्निंग और करियर स्टडी करती हैं और एक कंटेंट क्रिएटर जो अपने यूज़र्स को एकदम नया पर्सपेक्टिव देती हैं ऑन पेरेंटिंग. In fact, she is also going to walk the ramp for Leaders of Hope and is wearing Rohit Gandhi and Rahul Khanna. Welcome, Dr. Sania. And Sania, आज हम एकदम एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. आपने IIT रुड़की से इनेबलर्स ऑन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पे आपकी PhD थी. काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. क्या आप हमें बताएंगे व्हाट इज़ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली ऑल अबाउट? Okay, so if I talk about learning organization, it is all about organizations learning, unlearning and relearning. And that is the only thing जो मुझे बहुत ज़्यादा fascinate करी. And when I started reading papers, research papers on that particular topic, I realized that not only corporates but academic institutions को भी learning organization बनना चाहिए. So my research was on learning organizations in academics. Yes, and I feel कि learning organization सिर्फ एक workplace नहीं है. It is actually a mindset wherein आप learn करते हो every day and you evolve every day. And it is very important to learn every day. Learn from your mistakes, learn from your experiences, learn from the experiences of others. And when you start doing it, then ultimately, it happens at the individual level. वही team पे होता है, फिर वो organizational में embed हो जाता है. And that is how learning organization comes into picture. वंडरफुल. आपको क्या हमेशा से लगता था कि एकेडमिक्स इज़ योर कॉलिंग, या आपको लगता था कि नहीं मैं कभी शायद कोई ऐसा मोड़ आएगा जबकि शायद मैं कंटेंट क्रिएटर बन जाऊंगी या मैं कोई और लाइन चूज़ करूंगी? कभी आपको लगा था कि नहीं मे बी नॉट एकेडमिक्स बट शायद हो सकता है मुझे कॉर्पोरेट में जाना चाहिए था? कोई इस टाइप का आपका था या इट वॉज प्योरली एकेडमिक्स? So honestly, if you ask me, academics was never a straight path. मैंने बहुत corporate पे try भी किया, but then academics pulled me back, and it is only because of the students. Correct. Students' growth and the questions they asked, the queries they have, and how they grow. That is what I see, and that pulls me back in academics. And मेरे को ना एक quote है जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है, वो है टीचिंग इज़ द प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशंस. तो जब मैं पढ़ाऊंगी बच्चों को तभी वो एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, तभी वो कॉर्पोरेट में जाएंगे. एंड दैट एक्चुअली पुल्ड मी कि नहीं, एकेडमिक्स में ही रहना है, एंड आई लव माय जॉब.
करेक्ट इंडीड टीचिंग जैसा नोबल प्रोफेशन आई डोंट थिंक कि कोई भी हुआ है बिल्कुल है ना एंड जो भी चाहे आज हमारे कोई यू नो इनफैक्ट अगर कोई पॉलिटिशियन होता है या कोई हमारा जैसे आपने राइटली सेड एनी एंटरप्रेन्योर कॉर्पोरेट में गया है दे ऑल हैव देयर बेसिस यू नो कि किसी ना किसी टीचर ने उनको यू नो इंस्पायर किया होगा जो आज इस जगह पे है वंडरफुल मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी होते हैं यू नो कंफ्यूज हो जाते हैं यू आर इनटू एचआर if I'm right so बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे यू नो एचआर लेना चाहिए या फिर मुझे फिनेंस में जाना है आजकल एनालिटिक्स इज सो यू नो इट्स द बज़वर्ड तो वहाँ जाना चाहिए तो क्या आप इन बच्चों को सजेस्ट करोगे कि यू नो कैसे इनको चूज करना चाहिए बेसिकली ये तो आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया जो मैं एवरी डे फेस करती हूँ मतलब कभी मैं बच्चों से पूछ रही होती हूँ कि आप कौन सी स्पेशलाइजेशन ले रहे हो कभी बच्चे मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मैम हम कौन सी स्पेशलाइजेशन लें सो मेरा एक सिंपल सा आंसर रहता है डू नॉट गो बाय मार्केट ट्रेंड या मार्केट बस जो क्रिएट हुई हुई है वो नहीं करना चाहिए डू जो आपकी पर्सनालिटी जिसमें सूट करती है फॉर एग्जाम्पल अगर आप नंबर्स के साथ यू आर वेरी गुड विद नंबर्स देन यू शुड गो फॉर फिनेंस एंड एनालिटिक्स if you love understanding people maybe you can choose HR and if you have those storytelling skills and that convincing skills you should choose marketing तो मेरा बड़ा सिंपल सा आंसर रहता है do what your personality I mean fits best for market buzz नहीं great yeah okay so thank you ma'am moving on to our next question आज के टाइम में you know बहुत रैपिडली इतने चेंजेस हो रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि सबसे बड़ा इशू हमारे स्टूडेंट्स क्या फेस करते हैं you know और प्रोबेबली उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना उनको ना बहुत क्विक सक्सेस चाहिए सेल्फ डिस्कवरी मिसिंग है वो सोचते नहीं है दे डोंट रिफ्लेक्ट बैक ऑन देयर थॉट्स क्लैरिटी बहुत मिसिंग है मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ बहुत सारी जगह पे रहेंगे फोकस क्लियर नहीं है तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी दैट यू नो आप फोकस होके काम करो रिफ्लेक्ट करो कि आप क्या करना चाहते हो व्हाट आर योर थॉट्स एंड नए प्रोजेक्ट्स ट्राई करो नई इंटर्नशिप्स ट्राई करो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं हमेशा उनको यही सिखाती हूँ दैट यू मस्ट नो आपको पता होना चाहिए कि आपकी करंट रियलिटी क्या है मतलब आप कहाँ पर हो अभी एंड व्हाट इज़ योर पर्सनल विजन और आपका विजन क्या है उसके बीच का जो गैप है ना दैट शुड नॉट क्रिएट टेंशन बट शुड क्रिएट क्रिएटिव टेंशन और मैं इसको क्रिएटिव टेंशन क्यों बोल रही हूँ बिकॉज उस गैप को अचीव करने के लिए जहाँ पे मैं हूँ और जो मुझे गोल अचीव करना है वहाँ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा लर्न करना है बहुत नॉलेज गेन करनी है राइट तो उसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो रही है एंड सिर्फ टेंशन नहीं सो इट इज़ क्रिएटिव टेंशन टेंशन तो रहता है कि हाँ मुझे अपना गोल अचीव करना है बट वो कैसे करना है कितना पॉजिटिव होके करना है मैं ये बच्चों को बहुत ज़्यादा सिखाती हूँ दैट यू मस्ट फोकस आप वो एक्शन प्लान बनाओ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती है मेरे गोल तक अचीव करने के लिए एंड दैट लॉन्ग टर्म गोल उसको आप शॉर्ट टर्म में ब्रेक करो वो शॉर्ट टर्म ऐसे होने चाहिए कि वो अल्टीमेटली वो लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर रहे हैं आपका बट यू शुड बी वेरी क्लियर व्हाट इज़ माई करंट रियलिटी मेरा पर्सनल विजन क्या है और मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा या पहुँचूंगी सो ये आई रियली वॉन्ट टू टेल देम दैट दे शुड हैव एन एक्शन प्लान इन हैंड ऐसे ही नहीं काम करना क्विक सक्सेस मिल जाए कोई सेल्फ डिस्कवरी नहीं है क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक इसी में शायद इफ वी से डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो आप तो मैनेजमेंट के ही फील्ड में है सो आई थिंक ये अगर बच्चों में थोड़ा जल्दी हम यू नो उनको अगर हम सिखाएं हाउ टू टेक डिसीजन मेकिंग तो आई थिंक इट विल हेल्प देम इन द लॉन्ग रन मैं ओबी में पढ़ाती हूँ डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें हम बात करते हैं कि हाउ इंडिविजुअल्स टेक डिसीजंस टीम्स में कैसे होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कैसे होता है बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेक्ट या डिसीजंस भी कोई इतने क्विक नहीं होने चाहिए आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है रिफ्लेक्ट ऑन योर थॉट्स एंड देन यू टेक decision that is and I think that is where you know patience also comes into absolutely because अगर उनमें patience नहीं है तो they want quick things correct तो वो patience instant है आजकल so that वो possible नहीं है hard work
जो करना है वो तो करना ही है आप. You can't achieve anything without the hard work. करेक्ट. सो मैम मूविंग अहेड, अब हम आते हैं आपका एक जो ये तो आपका एक एकेडमिकली जितनी अभी हमने बात की. नाउ देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव टू योर पर्सनालिटी, राइट, व्हिच इज कंटेंट क्रिएशन. सो it's very interesting to see an academician into as a content creator, because this is not something that we see. हम रोज नहीं देख रहे होते हैं इसे ऐसा, राइट. तो थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, कैसे आपने ये सोचा कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर बनती हूँ, राइट. कब आपको वो फर्स्ट थॉट कैसे आया था? क्या आप बहुत बोर हो गए थे पढ़ाते पढ़ाते कि आपको लगा कि नहीं अब मैं कंटेंट क्रिएशन में चली जाती हूँ, या कोई स्पेसिफिक था कि अब लोग ये भी कर रहे हैं तो लेट मी ऑल्सो ट्राई? सो जस्ट थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए. श्योर. सो दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज ऑन माय मैटरनिटी लीव. तो मैं बोर तो बिल्कुल नहीं हुई एकेडमिक से, मैं मैटरनिटी ब्रेक पे थी. एंड वन नाइट आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम एंड आई केम अक्रॉस अ पेज ऑफ अ मॉम इन्फ्लुएंसर. और मेरे को ऐसा लगा कि ये अपनी डॉटर की पिक्चर्स डाल रही हैं, इतने मतलब इतनी छोटी बच्ची इतने अच्छे अच्छे गाउन्स में है, और फिर वो लिख रही हैं उसके बारे में. एंड देन कुछ टैग हो रखा था ब्रांड, मतलब आई वाज न्यू टू इट ना. तो है क्या ये? तो मैंने एक सर्च किया, उनका बाकी का पूरा पेज देखा. तो उसके बाद मैंने गूगल पे डाला दैट व्हाट इज दिस, सम क्वेश्चन, आई हु इज एन इन्फ्लुएंसर और समथिंग, मैंने डाला था ये क्वेश्चन. एंड फिर मैं वापस जब इंस्टाग्राम पे आई तो वो आता है ना सजेशंस और आने लग जाते हैं इंस्टाग्राम पे. फिर मैंने देखा ये तो बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ है. एंड उसी रात में वो 2-4 घंटे में ना मैंने अपनी डॉटर के नाम से एक प्रोफाइल बना दी, द जीनिया शर्मा. ओके. एंड व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग आई टोल्ड माय हस्बैंड कि मैंने ऐसे प्रोफाइल बनाई है जीनिया की. तो उन्होंने मुझे बोला अरे यार तुम बच्चे की प्रोफाइल क्यों बना रही हो, तुम खुद ही पहले इतना फेसबुक हम लोग बहुत करते थे. तो मैंने बोला कि नहीं इट्स नॉट दैट, आपको मैं बताऊंगी, है ना. और मैंने उस पर लाइक वट एवर प्रोडक्ट्स जो मेरे पास अवेलेबल थे बच्चों से, या जीनिया ने अगर कोई एक्शन किया या फ़ैन को देखा, या तो मैंने उस पर ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया उसकी एक पिक्चर के साथ. एंड वो धीरे धीरे करके मतलब हिट होता रहा. मुझे डीएम्स आने लग गए मॉम्स के. तो मेरे को लगा कि हाँ देयर इज समथिंग, मैं कर सकती हूँ इसको. तो ऐसे मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी. Yes, this is how I started. वो overnight ही हुआ. And yes, and then there was no looking back. Correct. Yes, absolutely. मैम now ऐसा भी नहीं है कि आपने एक चीज़ छोड़ दी, राइट, कि आपने academics नहीं छोड़ा, research नहीं छोड़ी. I think even at your in your professional life अभी आप शायद placements भी देख रहे हो बच्चों का, right? You are into so much. तो how do you balance that? आप research को, academics को, content creation को बैलेंस कैसे करते हो? या कभी कभी लगता है नहीं बहुत हो गया, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट? देखो इजी तो नहीं है, डेफिनेटली इजी नहीं है, बट विद गॉड्स ग्रेस आई एम गुड एट मल्टीटास्किंग एंड गॉड हैज गिवन मी दिस लॉट ऑफ एनर्जी एंड मेड मी एक्टिव. आई थिंक कि मतलब वो मेरे में है. तो मैं हमेशा भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि मैं ऐसी हूँ. एंड बैलेंस फॉर मी, वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट यस, बैलेंस आराम से कर रही हूँ इस चीज़ को. एकेडमिक्स भी नहीं छोड़ना, बिकॉज मैंने PhD करी है और मेरा बहुत इंटरेस्ट है. एंड मैं क्लास में जाती हूँ, वो मेरा स्ट्रेस बस्टर है जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ. मैं 9 to 5 जॉब करके आती हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि मैं थक गई, नहीं, आई हैव टू डू माई शूट, वो मेरा स्ट्रेस बस्टर है. तो वो दोनों चीज़ें ना जब आपके पैशन में है ना, और दे गिव यू हैप्पीनेस, तो वो आई थिंक आप करते हो, फिर आप मैनेज भी कर लेते हो कैसे करके. सो बैलेंस ऐसे ही रहता है. मतलब लाइक आई एम हैप्पी डूइंग इट. मतलब whenever I'm free, I would like to obviously spend time with my family. That is different. But if I talk about the professional life, I want to do shoots. They are my stress buster. तो मुझे बहुत खुशी मिलती है उससे. And regarding research, yes, मेरा बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था रिसर्च में. when मैं अपनी maternity leave पे भी थी, फिर मैंने वापस ज्वाइन करा. But then ultimately, yes, I am back with my research papers also. हाँ जी. तो वो टाइम निकालना पड़ता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं फॉलो करती हूँ वो है टाइम मैनेजमेंट. प्रायोरिटाइज करना और कुछ बाउंड्री सेट करना कि ये नहीं करना अभी, इट इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव फॉर मी एंड आई विल नॉट डू इट. सो आई एम वेरी क्लियर ऑन सर्टेन थिंग्स, आई एम वेरी फोकस्ड दैट ऐसे ही मुझे काम करना है. एंड तभी वो बैलेंस हो सकता है. बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी. यू हैव टू लर्न टू से नो टू अदर्स समटाइम्स.
ट्रू। हाँ जी। मैम ऐसे मोमेंट भी तो होते होंगे ना, कभी सेल्फ डाउट आया होगा, इवन इनिशियली आई एम सेइंग व्हेन यू स्टार्टेड एज अ कंटेंट क्रिएटर, राइट, देयर वुड हैव बीन मोमेंट्स जहाँ पे कहीं आपको लगा होगा कि नहीं अब बहुत ही ज़्यादा बर्न आउट हो गया है, हाँ, सेल्फ हाँ। डाउट्स आ रहे हैं, तो आपने कैसे उस टाइम को डील किया था? Because we have a lot of people who are watching your show and then they want कि अभी अब जो नई जनरेशन आई है they want to become content creators, right? So इसको कैसे डील किया आपने? आपको मैं सच बताऊं तो सेल्फ डाउट कंटेंट क्रिएशन में कभी भी नहीं आया, नहीं आया। मैंने आपको बताया ये बर्नआउट नहीं, ये स्ट्रेस बस्टर है मेरे लिए। सेल्फ डाउट आया ही नहीं, बिकॉज मैंने जब फर्स्ट या सेकंड पोस्ट या डाला अपना, और मे बी 10th पोस्ट डाला, आई वॉज ऑन इट, दैट देयर इज नो लुकिंग बैक। मेरे को बहुत अच्छा लगा करके, एंड इट गिव्स मी ऑल हैप्पीनेस। कंटेंट क्रिएशन इज दैट वन थिंग, आई डोंट थिंक सो आई वांट टू लीव इट एवर। मतलब मुझे शायद हो सकता है इन आफ्टर 2-3 years अपनी मार्केट वापस डिसाइड करनी पड़े, बिकॉज मेरी डॉटर भी बड़ी हो गई और मैंने एज अ मॉम इन्फ्लुएंसर शुरू किया था, तब बेबी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होते थे, अब बेबी भी बड़ा हो गया है मेरा, मेरे लिए तो बेबी ही है, बट यस, तो मार्केट हो सकता है मेरी चेंज मुझे करनी पड़े, एंड बट बर्नआउट और सेल्फ डाउट डेफिनेटली नहीं आया, बिकॉज व्हेन यू हैव पैशन तो आपको लगता है कि आप कर सकते हो। और मेरे पास एक्शन प्लान था कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, अब मुझे यहाँ जाना है, तो वो एक्शन प्लान ना एक लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका क्या लॉन्ग टर्म गोल है और फिर आप शॉर्ट टर्म उसको कैसे अचीव करोगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। सो दैट इज़ हाउ वो चलता रहा बहुत अच्छे से। अगर आप मुझसे पूछोगे तो कुछ जगहों पे शुरू में फोमो बहुत होता था, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कभी मैं कोई इवेंट पे नहीं जा पाई या कोई कोलैब मुझे नहीं आ पाई, तो वो स्टार्टिंग में होता था, लेकिन but now if you ask me, it's more of collaboration. If somebody asks me that I need a contact of this, I would be happy to share, unless until that my particular PR doesn't have any issue. Yes, I mean we should collaborate instead of competing with each other. Competing से क्या होगा? Exactly. Nothing. We don't. There's no success. You have to collaborate, and then you can move forward together. Yes. And I think that also comes with when you have that passion है आपके पास, तो आप में वो confidence है, confidence and you are very secure in that sense, yes, right? Yes, and also बहुत positivity चाहिए इसके लिए। मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ कि अगर मतलब मैं उसको क्यों दूँ, मतलब वो क्यों आगे बढ़ जाए। No, everybody is doing their own work. देखो मैं अपनी जॉब भी कर रही हूँ और मैं साथ में कंटेंट क्रिएशन भी कर रही हूँ। कोई ऐसे भी हैं जो सिर्फ जॉब कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। अब उनको अगर 4 कैंपेन्स मुझसे ज्यादा आ रही हैं, इट्स ओके। आई मीन फोकस अपने काम पे रखना चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है, आप शेयर करो, कोलैबोरेट करो, बट फोकस हैज टू बी योर वर्क। दूसरों के वर्क पे ध्यान देने से आप स्ट्रेस में ही आते हो, आपको फिर फोमो होगा, है ना। और ये नेगेटिव वर्ड्स आई डोंट वांट इन माय लाइफ, तो मैं थोड़ी yes, तो मुझे थोड़ा पॉजिटिव और हैप्पी रहना है, तो मैं थोड़ा इससे इन चीजों से दूर रहती हूँ। I think when you stay positive तो ही आपकी शायद growth भी होगी, correct? Absolutely. अच्छा, ऐसी क्या चीजें people who are just starting their own channel या अभी अपना account खोल रहे हैं, उनके लिए 3 tips that you'll suggest as a content creator if one wants to start their journey, तो वो क्या होगा? Okay, starting from how to choose a topic, so if you could just tell us more about it. Okay, so I would like to say consistency बहुत ज़रूरी है, ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ यू हैव टू चूज योर प्लेटफॉर्म। यू कांट बी एवरीवेयर एकदम से। आप स्टार्ट कर रहे हो जब, तो आप एवरीवेयर नहीं हो सकते। लाइक आई चोज माई प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम। अभी मेरे पास आती है कुछ कैंपेन्स के आप यूट्यूब पे हो, तो मैं नहीं हूँ यूट्यूब पे और मैं नहीं कर सकती अभी। मेरे पास मैं क्लियर हूँ, मेरे पास अभी नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है शायद, मैं एक पे फोकस कर रही हूँ। तो फोकस बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, प्लस आपका कंटेंट फॉर्मेट क्या है। आई स्टार्टेड एज अ मॉम इन्फ्लुएंसर, ग्रेजुअली मैंने धीरे धीरे करके जब उसमें मेरा मार्केट सेट हो गया, तब मैं अब फैशन में थोड़ा लाइफस्टाइल में आई हूँ। एंड मूविंग फॉरवर्ड, लाइक मैंने आपको बताया कि मेरा बेबी अब बड़ा हो गया है, तो मेरे को अब सेट करना है। सो आई हैव प्लान्ड दैट आई विल मूव टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स फैशन, मोर टुवर्ड्स लाइफस्टाइल, मोर टुवर्ड्स फिटनेस में भी, बिकॉज अब मेरे एज ग्रुप में वो ज्यादा फॉल करेगा। Correct. Yes. So focus has to be clear, consistency has to be there, authenticity has to be there, and then you choose your platform. You choose where you are best. बहुत सारे लोग हैं जो ट्राइपॉड पे
अपनी खुद रील्स बनाते हैं, एंड आई डोंट वांट टू से आई एम वेरी पुअर इन दैट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. मैंने अभी रिसेंटली काफ़ी बनाई भी हैं, मुझे नहीं पता उसका आउटकम में कितना, मतलब इट वॉज एन ओके रिस्पॉन्स, बिकॉज आई वॉज यूज टू कि प्रोफेशनली शूट करना है, बट वो बनाते हैं तो वो उसमें बहुत अच्छे हैं. दे विल क्विकली गेट रेडी, डू अ ट्रांजिशन, वहीं से आके ट्रांजिशन करेंगे, एंड दे हैव अरेंज फॉर गुड लाइटिंग एंड एवरीथिंग. तो यस, सबका डिफरेंट है. आपको अपना देखना है कि आपका कंटेंट फॉर्मेट क्या रहेगा. ओके, थैंक्स फॉर द इनसाइट्स. एंड मैम ऐसा भी तो होता है ना, कई बार कंटेंट क्रिएटर्स यू नो कई बहुत बड़ी कोई गलतियां कर देते हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ कि जैसे जब हम चूज कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे यू नो ओवर योर एक्सपीरियंस, बिकॉज आई थिंक 2018 यू स्टार्टेड, राइट, सो इट्स बिन क्वाइट सम टाइम, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बता सकते हो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस की प्रोबब्ली यू नो ये 3-4 चीज़ें नहीं करनी चाहिए व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर कंटेंट. सो व्हाट आई फील इज दैट देयर शुड नॉट बी एनी फोमो नहीं होना चाहिए. दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं इस जगह पे नहीं पहुंच पाई या वो पहुंच गया, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. बिकॉज आप जहाँ पे हो प्रेजेंटली वो इंजॉय करो अभी, इट्स ओके, आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा. एंड दूसरा, डू नॉट कम्पीट, कोलैबोरेट करो. तो मुझे ऐसा लगता है ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल भी मत करो, एंड फोकस रखोगे अपने काम पे तो बिल्कुल सही रहेगा. दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल एवरीबडी, बिकॉज मेरे को पता है कि मैं उस टाइम से निकली हूँ. तो आज मुझे ऐसा लगता है कि वाई सान्या, आई मीन व्हाट वाज द फियर अबाउट, व्हाट वाज द कंपटीशन अबाउट? There is no competition, there should not be any fear. Focus is the game. So supposing मैम जैसे अगर कोई आज स्टार्ट करता है, राइट, एंड देन यू नो दे ऑब्वियसली इवेंचुअली इट्स अ लॉन्ग जर्नी, है ना, टाइम लगता है आपको आपकी यू नो बेस बनाने में. तो क्या क्या पैरामीटर्स होंगे कि यू नो मुझे लगे कि अच्छा ठीक है, यू नो मेरा इतना हो रहा है तो प्रोबेबली यू नो आई एम अबाउट टू रीच देयर, या यू नो ये जा रहा है तो आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स आपने भी रखे थे? मैम देखो, ये ना बहुत लॉन्ग जर्नी है. इट्स बीन 8 years नाउ, एंड मैंने आपको बताया इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड ऑथेंटिसिटी. आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है आप वो करो. सो आप रियल रहो, ऑर्गेनिक रहो, लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है. सिर्फ ब्रांड्स नहीं कर सकती मैं. तो मुझे स्टोरीज पे मैं रियल डालती हूँ कि हाँ, जैसे कि आज क्या है, या जीनिया ने आज कोई कंपटीशन में पार्ट लिया, मतलब वो रियल चीज़ें भी डालनी चाहिए. कि मतलब ऐसा नहीं है समर वेकेशंस में मैं सिर्फ 20 days घूमने के लिए गई, वापस आके जो मैंने दिन रात लगा के होमवर्क कराया बच्चों को अपने बच्चे को, मतलब वो भी डालना चाहिए कि हाँ, मतलब तो इतनी रोजी लाइफ जो वहाँ पे दिखती जो हमें है, जो फ्रंट पे दिख रही होती हाँ, है. तो ऐसे नहीं है. मतलब सारे काम हम लोग करते हैं, तो मतलब थोड़ा बैलेंस करके इसको करना चाहिए. मतलब अगर आप बैलेंस अगर मुझसे पूछोगे तो आप बताओ, मैं 5:30 पे उठती हूँ सुबह, एंड आई डू ऑल द कुकिंग. मैं खुद ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ, पैक करती हूँ. मेरी डॉटर स्कूल जाती है, मेरे हस्बैंड फिर ऑफिस जाते हैं, मैं ऑफिस जाती हूँ, फिर वापस आके मैं डॉटर को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी लेके जाती हूँ. फिर वापस आकर मतलब फिर डिनर के लिए चलो, आई हैव अ कुक, बट देन यस, दिस इज द एंटायर रूटीन. एंड आप जब तक खुश नहीं होगे ना और हैप्पी नहीं होगे तो आप ये नहीं मैनेज कर पाओगे. तो ये बहुत ज़रूरी है मैनेज करना. एंड जहाँ तक बात है कि आप अपना मार्केट आपको खुद सेट करनी है कि मेरी ऑडियंस मुझसे क्या देखना चाहती है. तो वो शुरू में तो थोड़ा ट्राई आउट करना ही पड़ता है. हाँ, फिर आप देखो कि आप किस में अच्छे हो. एंड आई थिंक ये भी होता है कि पर्सनल हर एक की जर्नी डिफर करेगी. हाँ जी, डिफर करती है. यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स वाला वो होता है. यस, एब्सोल्युटली. आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, बट उसको कॉपी नहीं करो, इंस्पायर हो. इंस्पायर और कॉपी में डिफरेंस है थोड़ा सा. आप कॉपी करके नहीं कर सकते, आप इंस्पिरेशन लेकर मूव फॉरवर्ड कर सकते हो. हाँ, सीखो किसी से, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स. मैम जैसे एआई का क्रेज है, यू नो हाइब्रिड की तरफ वी आर गोइंग, सो मच ऑफ इट इज चेंजिंग, राइट. तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि बिकॉज यू नो यू आर इनटू एचआर, आप तो इतना प्लेसमेंट्स देखते हो, साथ में आपके अंदर इतने स्किल्स हैं, यू नो, तो कुछ ऐसा आपको लगता है एवरग्रीन स्किल्स हैं जो हमेशा रहेंगे? एब्सोल्युटली मैम. मतलब एआई के आने से मतलब ऐसा नहीं है, अगर आप स्किल्स की बात करो, सो आई वुड से
people skills, Correct. adaptability, emotional intelligence, Yes. ये कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं. आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना क्या है? वी नीड लीडर्स जो इमोशनली इंटेलिजेंट है, वी नीड मैनेजर्स जो इमोशनली इंटेलिजेंट है, राइट? बिकॉज अगर आप अपनी फीलिंग्स और उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाओगे अपने एम्प्लॉय की, सो डजंट वर्क लाइक दैट. और अडेप्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के सिचुएशन में. एवरी इंडिविजुअल, हर इंसान डिफरेंट है. हम ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोगों को मिलते हैं, सबकी अपनी पर्सनैलिटी है, एंड इट इज़ ऑल गाइडेड बाय पर्सनैलिटी, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, तब से आप बनता है. मैच नहीं हो सकता हर के साथ. अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सिचुएशन के साथ अडेप्ट होना बहुत ज़रूरी है. एंड पीपल स्किल तो टाइमलेस और एवरग्रीन. तो उसके बिना तो हाउ विल यू कनेक्ट टू द पीपल, हाउ विल यू कनेक्ट टू द वर्ल्ड? So it is timeless and evergreen. So I think these three people skill, adaptability and emotional intelligence is what I feel still they are evergreen. Yes. That's one. मैम अगर फाइनली अगर आपको कोई एक जस्ट वन लाइनर कोई मंत्रा देना हो कि टू आर यंग ऑडियंस जो कि दे आर इनटू प्रोफेशन एंड दे आल्सो हैव टू मेंटेन सम साइड हसल्स, सो व्हाट वुड दैट बी? Okay. So I would like to say that don't rush in your journey. Sit, relax, reflect on your thoughts, and then make an action plan and move ahead. Do not rush. That is what I want to say. Thank you Dr. Sania, and it was wonderful having you. And I think जो content creators बनना चाहते हैं उनको भी काफ़ी आज आपकी journey से काफ़ी कुछ पता चला होगा. And thank you ma'am for Thank you ma'am. Thank you so much. Thank you guys for watching this episode, and don't forget to like, share and subscribe Jagran Josh. Thank you.